wisdom. The magic that music can create is that it is absolutely timeless, and it is because it directly comes out of our heart and capture soul. Music relates to all of us. In music, we are one family. Some are melody, some are rhythm. Music is universal. It makes the heart beat out of chaos. Music is the shorthand of emotions. Music is the strongest form of magic. The character of instrumental music lets the emotions radiate and shine in their own way without presuming them as real or imaginary representation. Instrumental music is wine which fills the cup of silence. So let's bring the stars live on stage. Audience, please welcome them with a huge round of applause.
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्कूल के चेयरमैन माननीय बीबी शर्मा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। When words fail, music speaks. And in the same way, when our Renaissance champs sing Renaissance song in any gathering, then the whole environment is filled with blooming colors, sensitizing energy, and graceful benevolence. Every stanza of Renaissance anthem invokes and infuses the sense of pride, belongingness, and togetherness. Renaissance Anthem marks the grand beginning of our annual fiesta. It depicts not only the culture of our school, but it directly captivates our mind and solaces our soul. It is the glory and pride of we Renaissance. And with the same puissant message, here are the sensational pop stars of Renaissance with our breathtaking Renaissance anthem. The stage is all set to unfold a celebration of vision, a starburst of colors, joy, and splendor. Good evening, ladies and gentlemen, dignitaries, invited guests. We keep moving forward, opening new doors and doing new things because curious and our curiosity keep leading us down the path. We, the Renaissance fraternity, bow our heads in respect to welcome our guest. It's a happy day full of joy and exhilaration as we are celebrating our annual fiesta Pratibha. I, Yash Bansal, head boy Renaissance School, And I, Himani Sharma, head girl Renaissance School, are extremely honored to have the privilege to address the welcome note to this august gathering.
Tiny seeds make boundless harvest. Drops of rain compose the showers. Seconds make the flying minutes, and the minutes make the hours. We are immensely blessed to have you all here. School annual day is the one that showcases the inner talents of every child. It's a wonderful platform for the partners to witness that how their ward is being groomed in the school. It is a day where every child would like to tell their parents that they are talented buddies. I'm sure every parent would love to see their ward on the stage presenting and partaking in the school annual day. All that has been, all that is, and all that will ever be is for God alone and for His glory. Words are the rose petals that are sprinkled with fragrance to invite you all with warm greetings. Not merely words, our heartfelt feelings filled with emotions add flavor to invite you. Our excellence in every field, on every occasion, in every walk of our life is being exemplified for your good selves. We feel euphoric to welcome our chief guest of the day, honored Shri B.B. Sharma ji, Chairman, Renaissance School. Distinguished members of the management, Shri S.K. Sharma ji, Shri Jagmohan Sharma ji, Shri A.K. Sharma ji, Chief Administrator, Senior Administrators, Administrator, Principal, Vice Principal, Headmistress, and all esteemed guests and our worthy and respected parents. Ladies and gentlemen, tonight we have stars in the sky and on the stage. We are favored to welcome some of the brightest the world has seen. For that, I have the pleasure of requesting our Chief Administrator Sir to welcome our Honorable Chief Guest by presenting him a floral pot. Please, sir. Thank you, sir. Renaissance School imparts education with impeccable commitment and Himalayan dedication. Our school is an apt platform to inculcate inclusive education cutting across religion, race, and geographical boundaries. It's high time to realize that a number of challenges lie ahead of us in creating a new society, and we have reawakened with your immeasurable love, support, and appreciation. Dear, all endure yourself to discover the undiscovered talents of our Renaissance, to compute the valuable gem to this celebration. We are delighted, and your presence adds more flavor to this evening cultural extravaganza. Sit back, relax, and take back home sweet memories. Light represents God's presence and spells the darkness and illumines. Love and light are the essence of God and therefore of our own being and everything that exists. All creation is from God alone and for His greater glory. Whether it is the incomprehensible complexity behind the nature or the noble achievements of humankind, there is a divine spark that lets this world move. Now let's welcome this light divine to amidst us. May I have the honor of inviting our Honorable Chief Guest along with members of management to light the lamp. Please, sir.
Thank you, sir. Now may I call upon our favorite principal, sir, to the dais with a welcome note to all the guests. Please, sir. Today, on the eve of Pratibim 2016, I take this opportunity to welcome our chairman, Mr. B.B. Sharma, members of the management, Mr. S.K. Sharma, Mr. J.M. Sharma, Mr. A.K. Sharma, Chief Administrator, Senior Administrators, Administrator, and proud parents. I feel proud to share the school's achievements and success of students and teachers, not only at district, national, but also at international level, that actually displays the overall growth and prospects of Renaissance in terms of their holistic development, achievements, and their desire to touch the sky. Throughout the session, as we all know, Renaissance has been striving to achieve the best of the best for its students. Whether it is academics, sports, competition inside and outside the school premises, junior or senior level, it gives me privilege to announce that our students have been able to glorify themselves. Renaissance international policy is aimed at bringing both students and teachers closer to their global peers while making them worthier citizens of the world. Realizing our students' role as important members of the 21st century global order, we have scaled up their innovations capabilities, provided a larger and realistic view of the world and the picture in it through global collaborations. School received the prestigious International School Award by British Council. Through video conferencing, writing mails, creating blogs, and sharing videos with partner schools in UK, USA, Egypt, Lebanon, Ukraine, and Cambodia. Children learn to respect each other's views while retaining their own stand. This partnership brings an international dimension to students' learning, improves their knowledge and understanding of other cultures, and prepares them for life and work as global citizens. The school has also been associated with Cambridge University for sharing best of the international educational practices and exponential growth. Both of these international bodies not only provide a holistic approach of development to these students, but also help in building their self-esteem, which further helps in shaping their future goals and prospects. Every year, the school is raising its benchmark in terms of class 12 academic results. These students are also excelling in various competitive exams like NTSC, medical, IIT, etc. The school is regularly giving ample opportunities to these students, not only in district, but also outside the district, which is really remarkable. Our students participated in Creo Festival in Nehru World School. Our school was ranked 4th for overall performance out of 50 renowned schools of Delhi and NCR like DPS, MET, Rayan, etc. Various club activities comprising of adult education, cleanliness drive, and environmental issues were initiated, and the school had overwhelming response from the students. Apart from academics, our students have shown their talent by winning Santosh Basketball Trophy for 3 consecutive years. The school invited eminent sports personalities like Mr. Rakesh Kumar, the captain national Kabaddi team, Master Shapat, a shooter, Mr. Avnish Yadav, the international volleyball player, in the school from time to time to boost up the sports abilities of the students. The school also extends the after-school sports coaching by skilled coaches. Every year, the school organizes career counseling for the students of class 12 with their parents to clear their future academic doubts. The initiatives are endless, and yes, as we say, a lot is expected and a lot is required to be accomplished.
With the support of Renaissance fraternity, I am sure the next annual report will have no limits to speak about. Once again, a very good evening to all present, and I appreciate you all being here to motivate the participants. Thank you. Thank you, sir. Every art is an expression of here and now. When we celebrate its natural dynamics, it becomes a treat to pleasing eyes. Dance is a movement, literature, rhythm, painting, poetry, and coordination of moves. It is a window to larger life culture. The spiritual power which is always around all the humans, which is responsible in lightening the path of every individual with no demands. God is the one who is the creator, developer, nourisher, and protector of our life. He is our savior. Let's thank the Almighty, proclaim His greatness. The Lord, in His benevolence, has gifted us this wonderful evening, and we sing and dance for the gift of His love. किसी शुभ कार्य से पूर्व गणेश वंदना की वैदिक प्रक्रिया है विघ्नहर्ता। प्रथम पूज्य श्री गणेश वंदना से ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे समस्त विघ्न हर लें और राष्ट्र हित में उठाए इस कदम में हमें सफलता प्रदान करें। गणेश की ज्योति से नूर मिलता है, गणेश की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है गणेश के द्वार, कुछ ना कुछ उसे जरूर मिलता है। So here are the worshippers of Lord Ganesha with their Vandana. Let's hear for them. गजवदन हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय महाकाय हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय सुखकर्ता दुःखहर्ता माता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव 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 रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडिता मुकुट शोभतो बारा गुणसुणती नुपुरे चरणी घागर्या जय देव 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 कृतताळ लंबोदर कृतताळ विघ्नेश्वर कृतताळ धकट देखिट कनक देखिट कनक देखिट कृतताळ धकट देखिट कनक देखिट कनक देखिट कृतताळ 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 स्तवितो तुम्हा संकट अमुचे विलयाला जा स्तवितो तुम्हा संकट अमुचे विलयाला जाओ स्तवितो तुम्हा संकट अमुचे विलयाला जाओ हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय
If you drop your beliefs, you drop your success. God's mighty people begin to fall even as achievers when they begin to drop the beliefs they pursue at first. Today on this gala evening, when everyone is enthralled and happy, has a smile on lips, Renaissance family is moving ahead with a thought that success in life is not for those who run fast, but for those who keep running and always on the move. It's my prized privilege to host this momentous moment when Renaissance is going to appreciate the prodigies who have glorified the name of the school with the golden words of victory. It is the bless of Almighty or the hard work of the fraternity that our students never fail to win hearts through their immense dedication and laurels they grab everywhere and every time. I have the honor of inviting our chairman, Sir Shri B.B. Sharma ji, Chief Administrator, Mr. Abhiraj Sharma, Principal, Mr. Arun Kumar Sharma, on the stage to give away the honors to our toppers of the year 2014-15 and year 2015-16 by presenting a check worth rupees 11,000. Please, sir. In this series, may I call upon Nipun Jain, AISSCE topper with 96.8% marks in the year 2014-15 along with his family on the stage to receive the honor. Audience, please welcome him with huge round of applause. Next we have Anchal Agarwal, topper 2015-16 with 95.6% marks. I would like to request Anchal and her family to come on the stage to receive her honor. Let's hear for her. Renaissance, the diamond merchants, have been polishing the diamonds as the students for the last 15 years in the field of academics, sports, art, music, and many more. And in the burning desire to improve more and more, Renaissance has introduced various activities round the year. But to sensitize the students to the importance of sustainable development practice like skills and upholding high values so that these are manifested in their behavior in all spheres of their lives. The various clubs were introduced to provide platform to the students to showcase their talent. The clubs provide essential opportunities to the students to discover themselves. Renaissance has provided various ways and ample opportunities to enrich their potential. Renaissance gives them a steering wheel to move on the roads of their liking. The clubs are of all subjects: Hindi, English, maths, science, music, drama, health and wellness, heritage, computer science, art and sculpture. And truly, the students have made best out of the opportunities that had given to them by the school.
And today at our Culture Fiesta Pratibimb, we want all the invited guests to have a momentous glimpse on their presentation and how hard they are working for it. Now, I would like to call Hiba and Shelja for further proceedings. नए पैकेट में भरकर बेचे हम तो चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। फिल्मी दुनिया और पुराने गीत, वाह क्या बात थी। हर पंक्ति हर गीत का एक ही अर्थ। सादगी और भाव से पूर्ण गीतों के बोलों का दिल को छू जाना। आज भी याद है वो जमाना जब मुस्कुराते हुए चेहरे गुनगुनाते थे ये गीत। Indian cinema and our beloved songs have ruled our heart with their spellbinding presence. From the age-old silent cinema to the era of black and white movies and today to the fast and furious digital trends, our music keeps us mesmerized. The magical era of Bollywood beats, some thirakte dance steps and lots of drama is back with a flash. So, we present you all our very own personalized version of old and new with a touch of more fun element and a bling. पेश है पुराने गीत but with a new अंदाज. So give a huge round of applause for the rock stars of music club at Renaissance. साथ है, हंसना रोना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। याद है मुझको तूने कहा
हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा। मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, भर के देख लीजिए हमको करीब से। आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले से जो वादा किया वो, निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो, निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, Wow, that was indeed a mesmerizing performance. How captivating. Of course, the music actually made me tap my feet and dance along the song. सुनो सुनो क्या नानी कहती, हवा सुहानी अब ना बहती, पेड़ों से जो थी हरियाली, घर का आंगन अब है खाली, चिड़िया अपना गीत सुनाती, घर आंगन में अब ना आती, हरियाली घट जाने से, पेड़ों के कट जाने से। Trees are the poems that earth writes upon the skies. Our souls depend on their nurture, our minds informed by their radiance. They fill the spaces beautifully, but the kind of soothing electrical vibrations. Our senses restored will never be the same if planting trees is nowhere our aim. This madness whispers to us. What we are doing to the forest of the world today is a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to one another. क्योंकि पेड़ है तो हम हैं, पेड़ों के कट जाने से विश्व में घुलती वायु है, घटती मानव की आयु है। पेड़ से मानव तुम प्यार करो, मित्रों सा व्यवहार करो, पेड़ लगाकर तुम अपना उपकार करो। And with this powerful message of not cutting trees and planting a new future, the Renaissance of Health and Wellness Club are here to tell you the story of our lifelong mates, trees. खुशियों पर मस्ती की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई हैरानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी।
So audience, put your hands together and welcome them with your open hearts. मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। हाँ, बड़ा दुखता है, हाँ, दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। निर्मोहिया है तू, बेशर्म है, होता न शर्मिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मुझको बचा ले रे दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला। हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या। मुझको बचा ले री दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला। हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या। थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा पानी, तेरा इसमें क्या लगता है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। दुखता है,
लगता है। He destroys, he salvages, detoxifying the souls clad in sinful beings. Do you know whom I am talking about? Shiv, the supreme power of universe. ब्रह्मा को सृजन और शिव को विनाशकर्ता कहा जाता है, परंतु शिव बुराइयों का नाश करते हैं, आसुरी शक्तियों का नाश करते हैं। शिव में सब प्रकार से कल्याण ही छिपा हुआ है, क्योंकि सर्वशक्तिमान शिव ही एक शक्ति है, शिव ही सत्य है, शिव ही कल्याणकारी है। He is the preserver of life. His dance graces universe, bounding all the superlative forces together, a symbolic of insane passion and sustainability. Shiv is the toughest fiber in the fabric of existence. We dance for laughter, we dance for tears, we dance for madness, we dance for fears. We dance for hope, we dance for scream. We are the dancers and we create dreams. And here we are ready to welcome our students of Dance Club to pay a tribute to the ultimate supernatural force by their dancing postures and rave tunes to infuse effervescent energy in the air. So bring your left and bring your right hand together and clap hard to welcome our stunners. आग बहे तेरी रग में, तुझसा कहाँ कोई जग में है। वक्त का तू ही तो पहला पहर, तू आँख जो खोले तो ढाए कहर। वो सब गाना इनका उनका, वही है माला वही है मन का मस्त मलंग, वो अपनी धुन का अंतर मंत्र तंत्र ज्ञानी है, सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओंकार है इसी की वाणी, भांग धतूरा बेल का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता, विष पीकर भी अडिग अमर है, महादेव हर हर है जत्ता। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। बोलो हर हर हर, बोलो हर हर हर। नास्ति तत्त्वं गुरोः परादम्, नगेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। शिव रक्ष मां शिव, पाहि मां शिव, त्राहि मां शिव, रक्ष मां शिव, पाहि मां शिव, पाहि मां महादेव जी त्वं, पाहि मां शरणागतं त्वं, पाहि मां रक्ष मां शिव, पाहि मां शिव। आंख मूंद कर देख रहा है, साथ समय के खेल रहा है, महादेव महा एकाकी, जिसके लिए जगत है झांकी, जना में गंगा चांद मुकुट है, सौम्य कभी कभी बड़ा विकट है, आग से जन्मा है कैलाशी, शक्ति जिसकी तरस की प्यासी है प्यासी। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। आंख तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, गूंज उठे हर दिशा क्षितिज में, नाद उसी का बम बम बोले। वही
शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। ही शिवा तुझ में ही शिवा, कोई नहीं यहाँ तेरे सिवा। उड़ा राख अग्नि को ज्वाला तू कर, मिटा दे अंधेरे तू बन के शहर। तो बोलो हर हर जा जा के लाश जाकर विनाश, 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 जा जा के लाश जाकर विनाश। मोद कर देख रहा है साथ समय के खेल रहा है, महादेव महाएकाकी जिसके बोलो हर 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 में गंगा चांद मुकुट है, सब में कभी कभी बड़ा विकट है, आकाश चलता है कैलाशी शक्ति। बोलो हर 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 स्वरूपा जटाधराय पिनक हसाय सनातनाय दिव्य देवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। I like to see a man proud of the place in which he lives. I like to see a man so that his place will be proud of him. The theme of our culture Fiesta Pratibimb is so different and influenced on new pace of life, new rise awaits and new era in evolution. Our young generation is our future, and the feeling of nationalism is a feeling of pride. Certainly, with passing time, it is becoming a memory of distant memory of our glorious past. It's our privilege to celebrate the most influential undercurrents of being more than just the Indian following age-old traditions. Rather, enlighten priorities as a responsible citizen, empowering country and inspiring torchbearers of tomorrow. It is a colossal need of time to benedict the age-old elegance that is lying dormant in their hearts. We are once again trying our best to inculcate, incite, invoke and enlighten the feeling of nationalism in our young minds so that it can leave an indelible mark in their minds and hearts. भारत को सशक्त, समृद्ध एवं अखंड बनाने के लिए इतिहास में अनेक महापुरुषों और बलिदानियों के नाम आते हैं। इनमें अर्थशास्त्र के प्रणेता आचार्य चाणक्य का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। चाणक्य नीति से कौन परिचित नहीं होता? चाणक्य ने शिक्षक होने के साथ साथ राष्ट्रभक्त होने का भी कर्तव्य निभाया। उन्होंने अखंड भारत का स्वप्न देखा और उसे यथार्थ में भी अपने परिवर्तन से परिवर्तित किया। आज हम उस राष्ट्र हितैषी चाणक्य की राष्ट्रभक्ति का स्मरण कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य का उद्देश्य युवा शक्ति को जागृत कर उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना था। युवाओं में लुप्त होती राष्ट्रभक्ति को जगाने की दिशा में यह हमारा एक प्रयास है। Henceforth, inspired by the instilling values by Chanakya, a man with resolute persona, infinite wisdom, and extraordinary superlative vision. We are here before you this evening to leave an impact on your souls by the unmatched performance of Renaissance. आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा और उसे पूरा करने का विश्वास हमें शक्ति देता है। युवा शक्ति को प्रदान करने का यह मन में लिए विश्वास प्रस्तुत है आज का यह कार्यक्रम चाणक्य एक संकल्प। So audience, let's hear for them. मैं भारत हूं। जो कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूं वो बहुत पुरानी है, ईसा से कोई 330 साल पूर्व। ये वो समय था जब मैसिडोनिया का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना के जोर पे एक के बाद एक देशों को रौंद रहा था। सिकंदर दिल में दुनिया पे फतह करने का ख्वाब लिए एक के बाद एक देशों को मटियामेट करता लगातार बढ़ रहा था। ऐसे बर्बर राजा का खौफ
अब मेरी सीमाओं पे दस्तक दे रहा था और मुझे बेसब्री से इंतजार था उसका जो मुझे सिकंदर के इस संभावित खतरे से बचाता। मेरे इतिहास के सुनहरे पन्ने को लिखने के लिए चुना गया तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य को। नियति ने जहां एक ओर मेरी सीमाओं पर खतरे बिखेरे, वहीं दूसरी ओर उनका मुकाबला करने के लिए एक तरफ चंद्रगुप्त जैसा वीर पैदा किया जो उस समय की मेरी जरूरतों को देखते हुए सचमुच एक हीरा था, पर था अनगढ़। इसीलिए उसे तलाशने के लिए नियति ने चाणक्य जैसा आचार्य भी उसी दौर में पैदा किया जिसके मन में अखंड भारत का सपना भी था और उस सपने को पूरा करने के लिए उपयुक्त शासक की जबरदस्त इच्छा भी, जो मुझे एक सूत्र में बांध मुझे अपराजय बना सके। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बंदना राष्ट्र और राष्ट्रहित हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें प्रतिदिन ईश्वर की आराधना में महान राष्ट्र की कामना करनी चाहिए। स्वार्थ को छोड़कर राष्ट्र को महत्व देना चाहिए। प्रणाम आचार्य। तुम्हारा कल्याण हो। प्रधानाचार्य जी ने आपको बुलाया है। ठीक है। ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति। गुरुदेव, पर्शिया में हमने अपनी आंखों से देखा है सिकंदर ने वहाँ सब कुछ नष्ट कर अपना राज्य जमा लिया है। मैसेडोनिया से तो वो निकला ही है विश्व विजय के लिए। जो उसके सामने आता है सिर उठाता है या फिर सामना करता है उसकी सेना उसे कुचल देती है। आप लोग तो व्यापारी हैं, विदेशों के बारे में आपका व्यावहारिक ज्ञान हम सबसे कहीं अधिक होता है। आपको क्या लगता है सिकंदर यहाँ तक भी आ सकता है? क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, मैं भले ही व्यापारी नहीं हूँ पर तक्षशिला में आचार्य अवश्य हूँ और मेरी समझ से सिकंदर अपनी मातृभूमि से इतनी दूर हिंदू कुश पार नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? प्रणाम गुरुदेव। जो राजा विश्व विजय के लिए घर से बाहर निकलता है वो भारत जैसे समृद्ध और शक्तिशाली देश का भी सपना मन में रखता है। यदि ऐसा हुआ तो भारतवर्ष अपनी रक्षा कैसे करेगा? एक ही मार्ग है, अखंड भारत। अखंड भारत बनकर ही सिकंदर को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। आज आवश्यकता है सभी को संगठित एकजुट होने की। संगठित होकर ही भारत समृद्ध और अजय बन पाएगा। आचार्य चाणक्य को सपने देखने का बड़ा शौक है। आचार्य सुखदेव। गुरुदेव, क्षमा चाहता हूँ। 18-20 जनपदों में बटे भारत में अखंड भारत देखना दिन में सपने देखने जैसा नहीं है तो क्या है गुरुदेव? इतिहास वही बदलते हैं जो दिन में सपने देखते हैं और मेरा सपना है अखंड भारत और ये अवश्य पूरा होगा। चाणक्य, मैं आचार्य सुखदेव के इस व्यंग को अनुचित मानते हुए तुम्हारे स्वप्न को क्या कहूँ? असंभव विचार या अव्यवहारिक सोच? गुरुदेव, अखंड भारत कोई अव्यवहारिक विचार नहीं है। ये ना सिर्फ सिकंदर के संभावित खतरे का उत्तर है बल्कि यही एकता भारत के उन्नत भविष्य का मार्ग भी है। और बिखरी हुई शक्तियों को संगठित करके ही हम अजय हो सकते हैं। आवश्यकता है हर भारतीय अपने महत्व को समझे, अपनी शक्तियों को पहचाने। ये कठिन अवश्य है परंतु असंभव नहीं। परंतु इस असंभव कार्य को करेगा कौन? मगध। मगध? वो आपकी जन्मभूमि है इसलिए? नहीं आचार्य सुखदेव, मगध केंद्र है, मगध मजबूत है, मगध समृद्ध है, इसलिए। तुम सत्य कह रहे हो चाणक्य, लेकिन इसके लिए किसी को मगध जाकर नरेश को समझाना पड़ेगा। किसी को क्यों गुरुदेव? देश हित के लिए सबसे पहला कर्तव्य एक शिक्षक का है।
तो शिक्षक ही करेगा। हम तक्षशिला के शिक्षक हैं। मात्र छात्रों को पढ़ाना हमारा कार्य नहीं है, बल्कि छात्रों में राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्र हित की भावना का संचार करना भी है। अवसर आए तो राजा को भी पाठ पढ़ा सकते हैं और अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। मेरे विचार से यह कार्य तुम्ही को करना चाहिए। हाँ चाणक्य, तुम अभी चल पड़ो भगत के लिए, क्योंकि ये तुम अभी शुरू करोगे तो वहाँ बसंत उत्सव में पहुँच सकोगे। मतलब राग रंग, नाच गाना, सुरा सुंदरी, मतलब बसंत ही बसंत। यदि गुरुदेव वहाँ आपको भेज रहे हैं तो इनका भी लाभ उठा लीजिए, राष्ट्र हित के साथ साथ इसका भी आनंद लीजिए, है ना गुरुदेव? जिसकी जैसी प्रवृत्ति उसका वैसा विचार। तुम शीघ्र जाने की तैयारी करो। तुमने महाराज को यही संदेश दिया था ना कि तक्षशिला के आचार्य चाणक्य उनसे राष्ट्र सुरक्षा पर बात करने के लिए मिलना चाहते हैं। हाँ, कहा तो यही था, परंतु महाराज भी अंदर राष्ट्र हित के कार्य में ही व्यस्त हैं। प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है महाराज, पर तक्षशिला के इस आचार्य को डर है कि यदि यही प्रश्न कोई आपके सामने रख दे तो क्या उत्तर देंगे आप? कदाचित भूल चुके हैं कि कौन है आप महाराज?
मेरे प्रश्न का समझ में आने वाली भाषा में उत्तर दो। कौन हो तुम? मगध का बेटा, तक्षशिला का आचार्य चाणक्य। बड़े खेद की बात है अमात्य प्रमुख मुद्रा राक्षस, अब मगध नरेश के महल में कोई भी दरिद्र शिक्षक बेरोक टोक आ सकता है, हमारे राग रंग में व्यवधान डाल सकता है, हमें अपनी कक्षा का छात्र समझ ये कह सकता है कि हम ही ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। सर तो उड़ाया जा सकता है। हाय रे तेरा सौभाग्य, आज वसंत उत्सव है और हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए चुपचाप बता दे कि हमारे रंग में भंग डालने का ये दुस्साहस तूने क्यों किया रे दुष्ट ब्राह्मण? आपके रंग में भंग डालने का मुझे अत्यंत खेद है महाराज, परंतु मेरे समक्ष प्रश्न था मगध की सुरक्षा का, मेरे समक्ष प्रश्न था भारत की सीमाओं की असुरक्षा का, मेरे समक्ष प्रश्न था समूचे भारत के लिए मगध के उत्तरदायित्व का। इतने प्रश्नों का बोझ अकेले कैसे मैं उठाता महाराज? यदि आपके पास नहीं आता तो कहाँ जाता मैं? परंतु आपके बात करने का नहीं अमात्य, मत रोको इसे। ये तक्षशिला का शिक्षक है, बहुत बड़ा आचार्य है, देखे तो सही कौन कौन सी शिक्षाएं लाया है ये हमारे लिए। खुलकर धृष्टता करने दो इसे। बोलो। महाराज, मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय के लिए बड़ी सेना लेकर निकल चुका है, पर्शिया तक पहुंच गया है वो। हिंदू कुश पार करे इससे पहले आप बेगले भारत को जोड़ दीजिए, अन्यथा मिट जाएंगे हम। हमारे पास समय बहुत कम है। ये देखिए महाराज, ये भारत है और ये मगध, भारत का केंद्र है मगध। जब तक सिकंदर की सेना हिंदू कुश पार करे, आप सीमांत प्रदेशों को अपने साथ मिला लें महाराज, खतरा टल सकता है, बच सकता है भारत, बस आप आदेश दें। बहुत ले ली तूने हमारे धैर्य की परीक्षा। नीच ब्राह्मण, अब तू बताएगा हमें कैसे करें हम राज। धैर्य की परीक्षा तो शिक्षक के सामने होती है महाराज। मगध नरेश से किस तरह बात की जाती है ये तो पता नहीं है, और शासन चलाना सिखाएगा हमें। आप इसे अन्यथा ले रहे हैं महाराज। मैं तो एक शिक्षक का कर्तव्य निभाते हुए बस राष्ट्र हित की बात कर रहा हूँ। बस, अब अगर एक शब्द भी और बोला तो जबान खींच लूंगा तेरी। तेरी गरिमा तेरी शिखा में बसती है ना? कोई है? इसकी शिखा पकड़कर इसे महल के बाहर फेंक दो। धनानंद, मैं आचार्य विष्णुगुप्त आज ये प्रण लेता हूँ, जब तक तेरी सत्ता का समूल विनाश नहीं कर दूंगा, जब तक तुझे मगध के सिंहासन से हटा नहीं दूंगा, और जब तक इस राजगद्दी पर इस ऐसे व्यक्ति को बिठा नहीं दूंगा जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए भी अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये चाणक्य प्रतिज्ञा है, याद रखना इसे। नंद का ही वंश मिट जाएगा और नया राजा होगा, बिखरा भारत जिसके बल में एकजुट हो जाएगा। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो तुम? मैं चंद्रगुप्त। कहो, क्या बात है? आचार्य, मैं सम्राट बनने की कामना रखता हूँ, मगध का सम्राट। तुम सम्राट? तुम तो क्षत्रिय भी नहीं हो। आचार्य, मगध का राजा नंद क्या क्षत्रिय है? लेकिन तुम? आचार्य, मुझे भी सिखाइए राज्य कैसे जीता जाता है, मगध जैसा राज्य। स्वप्न को यथार्थ में बदलना सबके बस की बात नहीं है चंद्रगुप्त। किंतु स्वप्न देखना भी तो सबके बस की बात नहीं है आचार्य। तो शपथ लो चंद्रगुप्त, नंद वंश को नष्ट करना है, भारत को अखंड और सशक्त बनाना है। प्रतिज्ञा करो, भुजाओं में बल पैदा करो, शेष मुझ पर छोड़ दो। अब नंद वंश का विनाश निश्चित है। परंतु कैसे गुरुदेव? मुझे तो कोई राह नहीं दिखती। पवित्र निर्णय को पूरा करने के लिए स्वयं देवता भी चले आते हैं। स्वयं की शक्ति को पहचानो और चिंता मत करो। परंतु गुरुदेव,
मगध साम्राज्य बहुत शक्तिशाली है। नहीं है, शक्तिशाली दिखता है। नंद के प्रशासन में कोई सुखी नहीं है। चारों तरफ असंतोष फैला हुआ है। अमात्य गण भी दुखी है। बस मगध का सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और मगध को इंतजार है तुम जैसे वीर और साहसी राजा का। चलो। सम्राट सिकंदर घायल हो गए भाइयों, सम्राट सिकंदर घायल हो गए। कैसे घायल हो गए? सुना है रास्ते में मगध के सिपाहियों ने छुपकर हमला किया है। सिपाहियों, तुरंत पूछ करो। एक गया सिकंदर की छावनी में आकर बिना तलवार उठाए 2000 यूनानी सैनिकों में भगदड़ मचा देता है, दहशत पैदा कर देता है और हमारे महान सेनापति उसे बंदी तक नहीं बना पाते, ना ही ये जान पाते वो कौन था, कहां से आया था। सम्राट, वो मगध के नंद का जासूस रहा होगा। मगध के नंद का? उसे तो हमारी बढ़ती हुई ताकत से चिंता होनी ही है। सम्राट, सुना है कि तक्षशिला का चाणक्य नंद वंश का सफाया करने पर तुला हुआ है। अगर हम उसके साथ उसके वीर शिष्य चंद्रगुप्त के साथ गठबंधन कर सकें तो शायद। चाणक्य एवं चंद्रगुप्त के साथ हमारी तक्षशिला में मुलाकात का प्रबंध करो। सिकंदर को पूरा विश्वास हो गया है कि ये अफवाह नंदवंश की जासूस ने फैलाई थी। हमारी योजना सफल हुई। इससे हमें क्या लाभ हो सकता है गुरुदेव? बालक हो तुम चंद्रगुप्त, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। हमें इस आपसी संदेह को भुनाना होगा। यूनानियों के नंद के प्रति संदेह हमारे लिए लाभकारी होगा। गुरुदेव, यूनानी हमारे मित्र व सहयोगी कैसे हो सकते हैं? हम यूनानी और नंद को हरा कर रहेंगे, पर एक वक्त में एक ही शत्रु से भिड़ना चाहिए। हमारा पहला शत्रु है नंद और नंद का शत्रु है यूनानी सिकंदर। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है यूनानियों के साथ मैत्रिक समझौता। आप जानते हैं कि विपाशा नदी तक के भूभाग पर हमारा अधिकार हो गया है, परंतु भूभाग पर विजय पाना हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं है। हमारी कामना है यूनान एवं भारत की महान संस्कृति का उदय देखना, और ये तभी संभव होगा जब भारत एवं यूनान की ज्ञान विज्ञान कला एवं संस्कृति का संगम होगा। आपकी योजना आकर्षक है। क्या इसे यथार्थ की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए? अभी यहाँ यूनानी सत्ता स्थिर नहीं है। आपकी कामनाएं केवल कामनाएं बनी रहेंगी, उस पर सफलता के फूल नहीं खिलेंगे सम्राट। फूल खिलेंगे। आप जो सोचते हैं उससे पहले हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और आपकी एवं आपके शिष्य की ठोस मदद भी चाहिए। उसके बारे में बातचीत करने को तैयार हैं, क्योंकि ठोस कार्य ज्यादा सार्थक होता है। हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। मुझे प्रसन्नता है। बात पूरी होने दीजिए। मेरी 2 शर्तें हैं। कह डालिए। नंद को पराजित करने में आपका सहयोग चाहिए हमें। और दूसरी शर्त? और हमारे गठबंधन को मजबूत करने के लिए आपके सेनापति सैलुकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करा दें, जो मगध के भावी सम्राट हैं। आपकी शर्तें काफी गंभीर हैं आचार्य, और मुझे दोनों शर्तें स्वीकार हैं। तो ठीक है, मैं चंद्रगुप्त से मंत्रणा करता हूँ। क्या समझौते में उस यूनानी कन्या के साथ मेरा विवाह करने की शर्त भी शामिल है गुरुदेव? हाँ, यही एक शर्त है जो समझौते की नींव है। तुम मगध का सम्राट बनना चाहते हो, तुम्हारे पांव लड़खड़ा रहे हैं। मेरा निर्णय अटल है आचार्य। मैंने नंदवंश को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली है। यदि प्रतिज्ञा की है तो वैसा ही करोगे जैसा मैं कहता हूँ। परंतु उस कन्या से विवाह क्यों करूं मैं, जिसे मैं चाहता नहीं, जानता तक नहीं?
क्योंकि राजा का विवाह राजनीति तय करती है चंद्रगुप्त, राजा की इच्छाएं पसंद नहीं। यही एक उपाय है जो यूनानियों के साथ हमारा गठबंधन पक्का करेगा। गुरुदेव, आप आज्ञा दे तो मैं प्रत्येक झंझावात से जूझने को तैयार हूँ, हर मुश्किल सहने को तैयार हूँ, लेकिन यह विवाह मैं हरगिज नहीं कर सकता। दोनों शत्रुओं के साथ झेलना चाहते हो तुम चंद्रगुप्त? तुम हेलेना से विवाह करोगे? नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सुहासिनी को। सुहासिनी? कौन सुहासिनी? शक्तार की पुत्री, नंद के सुरक्षा मंत्री की पुत्री सुहासिनी। और सुहासिनी से विवाह करके तुम्हें क्या लाभ होगा? सोचो चंद्रगुप्त, सोचो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम्हारी महत्वाकांक्षा क्या है? तुम्हारे स्वप्न क्या है? मत भूलो चंद्रगुप्त, तुम्हारा जन्म प्रेम की रंगोलियां बनाने के लिए नहीं हुआ है। निकट भविष्य में तुम मगध के पूरे जम्बूद्वीप के एक सम्राट बनोगे। उस सुनहरे सपने को साकार करने के लिए तुम्हें हेलेना से विवाह करना है, और वो तुम करोगे चंद्रगुप्त, करोगे। सुवन झरलाई सुरद पिया किन छिन बिसराई सुरद पिया किन सजन बिन मोह कछु न सुहावे सजन बिन मोह कछु न सुहावे सजन बिन मोह बिगड़ी को मेरे कौन बनावे बिगड़ी को मेरे बिगड़ी को बिगड़ी को मेरे कौन बना दे। हसन रंग हसती बहलावे हसन रंग हसती बहलावे सुरद पिया गिन छिन बिसराई सुरद पिया गिन छिन बिसराई हर हर दम उनकी याद आई हर हर दम उनकी याद आई सुरद पिया गिन सुरद पिया गिन। शक्तार, तुम्हारी पुत्री का लावण्य शब्दों से परे है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरकर जमीन पर नृत्य कर रही हो। सम्राट की कृपा है, ऐसा प्रोत्साहन। हम इसे और भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं शक्तार। ये केवल हमारे लिए नृत्य करेगी। अवश्य, सम्राट वो आपकी पुत्री के समान है। मूर्ख, ये हमारा निर्णय है। वो हमारी पत्नी बनेगी और राजमहेशी। किंतु सम्राट, यह कैसे संभव हो सकता है? कहाँ सुहासिनी की आयु और कहाँ आप उसके पिता समान। शक्तार, तू हमारा विरोध करता है, राजाज्ञा का उल्लंघन करता है, तो विद्रोही है। बंदी बना लो इसे। नहीं, आप यह न्याय नहीं कर सकते सम्राट। नहीं, ये विद्रोही है। शक्तार,
यदि तूने अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ नहीं किया तो तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। सैनिकों, ले जाओ, इसे बंदी गृह में डाल दो। सम्राट, मेरे पिता को दंडित ना करें, आपकी इच्छा का पालन अवश्य होगा। तुम कौन हो? मुझे पहचानो शक्तार, मैं विष्णुगुप्त हूँ। यहाँ तुम्हारा जीवन सुरक्षित नहीं है, तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ मैं। तुम्हें ज्ञात नहीं, इस भवन के चारों ओर नंद के शस्त्रधारी सैनिक पहरा दे रहे हैं। इनमें से कई रक्षक हमारे साथ हैं। सोच विचार मत करो। आज तक तुमने एक व्यक्ति का हित करके क्या पाया? आज तुम्हें इस राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिला है। इस राष्ट्र के हित में अपना कर्तव्य निभाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। विष्णुगुप्त, पहले मुझे मालूम तो हो, अपनी इस मुक्ति का मुझे क्या मूल्य चुकाना होगा? कोई मूल्य नहीं चुकाना होगा मंत्री महोदय। मेरे पास चंद्रगुप्त का लिखा आदेश है, उनके नए शासन में आप रक्षा मंत्री होंगे। शासन जिसका अस्तित्व ही नहीं है? सूर्य उदय होकर रहेगा, अब अधिक विलंब नहीं है। अतचाई नंद का शासन तुम्हारे अमात्य के बुद्धि बल पर टिका हुआ है। ऐसे ही शासन के ताज बना रहना चाहते हो तुम, जिसमें तुम्हारी पुत्री को तुम्हारे ही सामने बलपूर्वक पत्नी बना लिया जाता है, मंत्री की पुत्री तक को नहीं। शक्तार, इस राज्य को तहस नहस करना ही होगा। हम जानते हैं नंद के कई मंत्री ईमानदार, शक्तिशाली और कार्यकुशल हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। नए मंत्री परिषद में उन्हें उचित स्थान मिलेगा। नए भारत का निर्माण हो रहा है, अब अधिक समय नहीं है, निर्णय करो। कैसा निर्णय? यही निर्णय कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। किसके प्रति है तुम्हारी निष्ठा, मगध और जम्बूद्वीप के प्रति या कापुरुष क्रूर शासक के प्रति? सुहासिनी का क्या होगा? उसे सुरक्षित कर पाओगे? इसकी कोई आवश्यकता नहीं, अभी ये संभव नहीं है, पर मैं इतना आश्वासन जरूर देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के शासक बन जाने के बाद सुहासिनी का बाल भी बाका नहीं होगा। बहुत हो चुकी औपचारिकता आचार्य चाणक्य। पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपने गणों के विरुद्ध युद्ध क्यों छिड़ा? हम ना तो साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं और ना ही सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन आपने हमारे साथ युद्ध किया ना, और आपको हराया भी। हम साम्राज्य स्थापित नहीं होने देंगे। साम्राज्य गणों का विनाश कर देगा आचार्य। हम साम्राज्य स्थापित करके रहेंगे, यह भी जान लीजिए गणाधिपति। एक बार मुठभेड़ में हार जाना युद्ध हार जाना नहीं होता। शांत हो जाओ चंद्रगुप्त, गणाधिपति हमारे मित्र हैं, ये हमारा हित चाहते हैं। हम गणराज्य का आदर करते हैं, लोकहित में इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं, परंतु आज स्थिति बदल चुकी है। यूनान के मैसेडोनिया से सप्त सिंधु तक साम्राज्य बन रहे हैं। सिकंदर ने कई गणराज्यों को पांव तले रौंदा है, और आप ये भी जानते हैं कि नंद के मन में गणराज्यों के लिए जरा भी सहानुभूति नहीं है। किंतु आप नंद वंश और सिकंदर से अलग नहीं हैं आचार्य। आपने अच्छा प्रश्न किया है गणाधिपति, मैं आपको सीधा उत्तर दूंगा। हम आपको आश्वासन देने को तैयार हैं। यदि आप नंद के विनाश में और यूनानियों के पराजय में हमारा साथ देते हैं तो हम आपकी स्थायी स्वतंत्रता सुरक्षित रखेंगे। यदि आप सीधे सामने न आना चाहें तो कोई बात नहीं, पर आप नंद के विनाश को रोकने के लिए चेष्टा नहीं करेंगे। इसका आश्वासन आप हमें दें। हम आप पर विश्वास कैसे करें? क्यों नहीं, हम विदेशी आक्रमणकारियों की तरह मनमानी करने वाले नहीं हैं, न ही हम नंद की तरह अत्याचारी हैं। हमारा केंद्रीय शासन नियमों का पालन करेगा और व्यवस्था को बनाए रखेगा गणाधिपति। और दूसरे गणराज्यों का क्या होगा? आपसे ये बात छिपी नहीं है कि सभी गणराज्यों का शासन अच्छा नहीं है। कुछ भीतर ही भीतर सड़ चुके हैं, कुछ नाम आपके गण हैं। आपकी बात अलग है। हम आश्वासन आप और आप जैसे को दे सकते हैं, क्योंकि आप दूरदर्शी हैं गणाधिपति। इस राष्ट्र की रक्षा करके आप इसका ऋण चुका रहे हैं तथा इस राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा एवं प्रेम प्रदर्शनी करने का ये उचित समय भी है। आप हैं हमारे रक्षा मंत्री शक्तार और आप हैं महाराज विलोचक, महाराज कौरव के छोटे पुत्र और महाराज मलयकेतु के छोटे भाई। महाराज चंद्रगुप्त और महाराज विलोचक की मित्रता
न केवल नंद के विनाश की सूचक है, बल्कि हमारे जन समाज के भविष्य का निर्माण भी करेगी। आप दोनों मिलकर अजय हो गए हैं। मंत्री महोदय, इसलिए मेरी इच्छा है कि इनकी मैत्री चिरस्थायी और अटल हो। मेरा एक सुझाव है, महाराज विलोचक और चंद्रगुप्त हमारे बनाए साम्राज्य के संयुक्त शासक होंगे। एक सिंहासन पर दो राजा? नहीं विलोचक, तुम आधे साम्राज्य का शासन करोगे, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में प्रयाग तक, और चंद्रगुप्त तुम त्रिवेणी संगम से कामरूप देश तक शासन करोगे। पश्चिम में हमारा क्या स्वतंत्र शासन होगा? तुम दोनों का पाटलिपुत्र में संयुक्त राज्याभिषेक होगा, पर अपने अपने प्रदेशों में स्वायत्त सम्राट रहोगे। संरक्षण और विदेशी आक्रमणकारियों की स्थिति में दोनों एक साथ काम करेंगे, पर अन्य विषयों पर अपना अपना निर्णय स्वयं लेंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। तो ठीक है, हम अपने इस निर्णय को अनुबंध में बदल लें। सम्राट, आपको राजधानी छोड़ देनी चाहिए। चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र को तीनों ओर से घेरना आरंभ कर दिया है। आपका यहाँ रहना घातक होगा। नहीं नहीं अमात्य, हम राजमहल छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा ना करें सम्राट, यहाँ रहेंगे तो गिर जाएंगे। आप भेष बदलकर चप्परदार गाड़ी में जाएंगे तो किसी को मालूम नहीं हो पाएगा। प्राण रहते मैं राजधानी की रक्षा करूंगा। परंतु हम जाएंगे कहाँ? महाराज, गुरु के बड़े पुत्र मल्लिकेतु चंद्रगुप्त के शत्रु और हमारे मित्र हैं। आप उनके यहाँ सुरक्षित रहेंगे। महाराज, क्या हो गया महाराज? मैं राक्षस ये प्रण लेता हूँ कि आपकी हत्या का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त का रक्त पीकर ही मेरा कलंक शांत होगा। सुनो, ये नृत्य और साज सज्जा रोक दी जाए। इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। समारोह रद्द कर दिया गया है। चंद्रगुप्त, तुमने नृत्य और साज सज्जा क्यों रुकवा दी? ये तुम्हारे नहीं, मंत्रिमंडल के अधिकार क्षेत्र में है। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, किंतु मैं समझता हूँ कि समारोह की स्थितियाँ अनुकूल नहीं है। नैतिकता की बचकानी कल्पना के लिए राजनीति में कोई स्थान नहीं है। गुरुदेव, विलोचक के साथ हमारा पवित्र अनुबंध था। वो एक चाल थी। संयुक्त राज्याभिषेक एक छल था। देखो, द्विराज अराजकता का निमंत्रण देता है। कौन सा निर्णय कौन करेगा, यही सोचने में राज्य डूब जाता। इसलिए विलोचक को मारना ही था। विलोचक की मृत्यु हो चुकी है। संपूर्ण राष्ट्र में अकाल व्याप्त है। तक्षशिला से कलिंग तक लोग भूखे मर रहे हैं। दूसरी तरफ राक्षस इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उसने मल्लिकेतु के साथ मिलकर गठबंधन कर लिया है। अनेक गण, राजा, महाराजा, यहाँ तक कि मेरे अपने संबंधी भी उनसे जाकर मिल गए। ये सब मिलकर पाटलिपुत्र की ओर कूच करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में समारोह कैसे मनाया जा सकता है गुरुदेव? समारोह रद्द कर दिया गया तो प्रजा के मनोबल को धक्का पहुंचेगा चंद्रगुप्त। नागरिकों को लगेगा कि तुम संकट से ही नहीं, पराजय से भी भयभीत हो, और अमात्य राक्षस उन्हें भी अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लेगा। मुझे क्षमा करें आचार्य। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे मित्र चंदन दास को जीवन दान दें। उन्हें मुक्त कर दीजिए और मुझे मृत्युदंड दे दीजिए। नहीं, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो अमात्य। मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा, और तुम्हारा दंड यह है कि मैं तुम्हें चंद्रगुप्त का महामात्य नियुक्त करता हूँ। क्या
ये सब छलता आचार्य चाणक्य? हाँ अमात्य, ये सब छल मात्र था। लेकिन मैं धनानंद का निष्ठावान हूँ आचार्य। मैंने सुहासिनी को वचन दिया है कि मैं प्रतिशोध लेकर रहूंगा, मैं पाटलिपुत्र नहीं जाऊंगा। ये मत भूलो अमात्य कि नंद का कोई उत्तराधिकारी नहीं है और सुहासिनी भी बहुत भिक्षुणी बन गई है। चंद्रगुप्त सम्राट है, उनका शासन स्थिर है। सम्राट होने के कारण वो मगध और मगध के नागरिकों का प्रतिनिधित्व है। क्या तुम्हारे मगध के प्रति कोई निष्ठा नहीं है? मैं तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य पथ दिखा रहा हूँ अमात्य। तुम नेक हो, निष्ठावान हो, ये तुम भी जानते हो कि कोई भी राज्य केवल अमात्य के बल पर नहीं चल सकता। मगध के संपूर्ण जन समुदाय को तुम्हारी और तुम्हारी प्रतिभाओं की आवश्यकता है अमात्य। मगध का हित इसी में है कि तुम ये दायित्व स्वीकार करो। नंद के प्रति निष्ठावान रहकर तुमने पूरा जीवन बिता दिया, परंतु आज इस राष्ट्र की सेवा करके अपने उत्तरदायित्व को निभाने का समय है। व्यक्ति से अधिक राष्ट्र महत्वपूर्ण है अमात्य। आज इस राष्ट्र का ऋण चुकाने का समय आ गया है। चलो। ठीक है आचार्य, आपकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, ईमानदारी और इस प्रकार बनाई गई नीतियों से मैं प्रभावित हूँ। आचार्य, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं आपकी राष्ट्रीय आराधना को स्वीकार करता हूँ।
मेरा स्वप्न साकार हो गया है। आज मगध चारों ओर से सुरक्षित है। अब शत्रु इसकी ओर बुरी निगाहों से नहीं देख सकता। आज आपके पास राक्षस जैसा मात्य और शक्ताज जैसा मंत्री है। बहुत पहले मैंने एक शपथ ली थी, आज उस शपथ से स्वयं को मुक्त कर रहा हूँ। आप सबके सामने मैं अपनी शिखा बांधता हूँ। सम्राट, अब मेरे तक्षशिला लौटने का समय आ गया है, मुझे आज्ञा दे। आप अभी कैसे जा सकते हैं गुरुदेव? महाराज, शिक्षक का कार्य समय अनुसार शिक्षा देना है और समय आने पर अपने देश के हित में अपना उत्तरदायित्व निभाना भी है। मैंने जो किया, अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना कर्तव्य निभाया है। अब नई पीढ़ी राष्ट्र और राष्ट्र हित को भूल रही है, उन्हें मेरी आवश्यकता है। महाराज, मुझे आज्ञा दे। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव, एक प्रश्न मुझे विचलित कर रहा है। कहो, क्या प्रश्न है? गुरुदेव, क्या आज युवा शक्ति राष्ट्र प्रेम से हीन हो गई है? हाँ, आज युवा भटक गया है, उसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। गुरुदेव, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। युवा शक्ति किसी राष्ट्र का आधार स्तंभ होती है। हमें स्मरण है, किसी राज्य की सुरक्षा से पहले आज प्रश्न है राष्ट्र की सुरक्षा का। देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायित्व हमारा भी है। इस राष्ट्र को गौरवशाली बनाने के लिए युवाओं को अपने जीवन मूल्यों और परंपराओं का निर्वाह करना होगा। ये राष्ट्र सफल व सक्षम तब होगा जब हम प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में सफल होंगे। समय साक्षी है कि राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में हमने अपने राष्ट्र को अपमानित होते हुए देखा है। सत्ताओं ने स्वार्थ की राजनीति से राष्ट्र का सदैव ही अहित किया है। हमें अब केवल इस राष्ट्र का विचार करना है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बांधना ही होगा। विजय निश्चित है, अखंड भारत की विजय निश्चित है। विजय निश्चित है, इस राष्ट्र के जीवन मूल्यों की आवश्यकता मात्र आह्वान की है। हम करे राष्ट्र आराधन आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन आराधन। अंतर से, मुख से, कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करे राष्ट्र अभिवादन अभिवादन। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन आराधन, करे राष्ट्र आराधन। तन
से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, आराधन करे राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से, हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर, हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। याद हमें युग युग की चलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं। हमने अभिषेक किया था जननी का परिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन, करें राष्ट्र आराधन, करें राष्ट्र आराधन, करें राष्ट्र आराधन, करें राष्ट्र आराधन। हम भारतवासी तब गौरवशाली होंगे जब यह राष्ट्र गौरवशाली होगा। आज युवा वर्ग में जागृति की आवश्यकता है। यदि हम युवाओं को जागृत कर सके और उनमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र हित की भावना को भर सके, तो निश्चित ही हमारा अखंड भारत का सपना साकार हो जाएगा। आज युवाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। यदि हम युवाओं को जागृत कर सके तो निश्चित ही भारत एक बार फिर विश्व पटल पर, अखंड भारत के साथ साथ विश्व पटल पर जगत गुरु की पदवी को सुशोभित करेगा। अतः एकजुट होकर राष्ट्र हित में चिंतन करें। स्कूल के चेयरमैन सर, मैनेजमेंट कमेटी के समस्त सम्मानित सदस्यगण, मुख्य प्रशासक महोदय, वरिष्ठ प्रशासक महोदय, प्रशासक महोदय, प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, मुख्य अध्यापिका महोदया, समस्त अतिथिगण एवं समस्त अभिभावकगण, आप सभी ने अपने बहुमूल्य समय में से निकालकर हमें यह समय दिया, बच्चों का उत्साहवर्धन किया और हमारे इस कार्यक्रम को इतना मनोरंजक पूर्ण बनाने में अपनी तालियों से उनका उत्साह बढ़ाया। इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। आप सभी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं।
धन्यवाद। निश्चित ही आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। एक नई सोच और नई विचारधारा के साथ मैं आपके समक्ष पुनः एक बार फिर से उपस्थित होऊंगा। आगामी वर्षों में हम पुनः एक नई सोच और नई विचारधारा के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। इसके लिए हमें आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।